Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. तो मोशन पिछले बार डिस्कस हुआ ना मोशन पूरा। Yes, sir. तो आज हम लोगों को एक्सरसाइज डिस्कस करना है ना। एक्सरसाइज आप लोगों ने Yes. सारा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। Sir, question number 5. बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। Sir, ये question समझ नहीं आया पूरा। A driver of a car traveling at 52 kilometers per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. है ना? तो सिंपल है। So V is equal to U plus 80 Yes, sir. and final velocity क्या है? 0 because the car is stopping. Yes, sir. U is, that is initial velocity, is 52 kilometers per hour. And time is given 5 seconds. तो इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। So acceleration. So this is one equation is there, one unknown is there. Then we can find out the acceleration. Okay. Another driver going at 3 km per hour. Another applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. Okay. ये हो गया पहला. Second is the second case. Again same cheese. V is equal to U plus 80. सर हाँ ये कौन सा चैप्टर का है? यही है ना मोशन। बस चैप्टर मोशन से। यस सर। कौन सा क्वेश्चन है आपका? आप अपना 5th क्वेश्चन बोलो। कौन सा बुक है? सेम बुक यूर फॉलोइंग। आप किस क्लास 9? All of you are in class 9th only, na?
Yes, sir. Okay. Then how question is the same question, na? Yes, sir. Then others. Another driver going at 3 km/h, another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. Okay. और इसका U है 3 km/h. इसका भी acceleration निकल जाएगा ना? Yes, sir. Okay. On the same graph, we will plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? अच्छा, हमारे साथ एक आज नए स्टूडेंट भी है ना, संस्कार है. हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम लोग मोशंस वी हैव कवर्ड, इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव कवर्ड. The three equations of motion s equals ut plus r square v equals u plus at, v square equals v square. तो ये चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है. आज हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं इसका. ओके, Okay, sir. आपने ये किया है पहले? No, sir. ओके, तो ये आपके लिए कम्प्लीटली न्यू चीज है. Yes, sir. ओके, फाइन. तो we will take extra class for you, और extra class में हम लोग we will cover the chapter. Okay, तब भी Okay, sir. still you be present and try to understand, you know, like try to understand something you will get out of this class. Okay, sir. तो अभी इसका क्या है कि हम लोगों को टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. तो हमारे पहले केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 52 km/h. ये हो गया 52, और फाइनल वेलोसिटी इज 0, Yeah. है ना. टाइम टेकन इज 5 seconds. So at time is equal to 0, our velocity is 52 km/h, and at time equals 5, velocity is 0. So this is the graph for the first car, and for second car, So that curve is not visible. this is straight line. Oh, it's straight line. Yeah. And for second car, it's 3 km/h, and it takes 10 seconds. So at 10 seconds, the velocity becomes 0. Okay. Yes, So now, sir. what is the distance which is covered by car 1? Okay, so this is car 1, and this is about car 2. So what is the distance which is covered by car 1? This is the distance This covered area. by car 1. Yeah. And this is the distance which is covered by car 2. Yes, sir. So which is bigger? Of course, the first one is bigger. Okay, Yes, sir. equals. So on the same graph paper, we have drawn it. And it is bigger. Yeah. Which question is it? Is it okay? Done? So no questions. If no questions, then I will give you some questions. Okay, we solve this question.
Yes. Sir, बोलिए, मैंने तो क्वेश्चन लिखा नहीं है। बोलिए। लिखिए ना। हाँ ये हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ यस। ठीक है सर, कौन से क्लास में आप? लिखिए। आप कौन से क्लास में? 9th में। हाँ ठीक है। 9th। हाँ ओके। तो देयर इज एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी, ओके, विच इज 50 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये कवर कर रहा है। यस सर। And then second object is there, same object, it covers the second distance of 50 meters in 10 meters per second. Okay, Yes, sir. now you have to Yeah. find out the average speed during. Okay? Find out the average speed in the travel. ठीक है? सर, हाँ, कुछ समझे नहीं, फिर से बताइए। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया, ए से बी का Yes, डिस्टेंस sir. है 50 मीटर्स, उसका Hmm. स्पीड था 5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, यस सर। ठीक है। फिर बी से सी गया वो 50 मीटर्स, बी से सी का डिस्टेंस है, टाइम टेकन इज, Yes, sir. the speed is 10 meters per second. So what is the average speed from A to C? Sir, 6.3 meter per second. What is the average speed from A to C? Sir, Okay. So how you find out it? sir, is my answer correct or wrong? हाँ, we'll discuss. सब लोगों ने किया? Okay, first, okay, I will solve this first. Then I will give you another question. Okay. So if you see, average speed is equal to Total distance Total- by total time taken. distance Traveled. divided by total time, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yeah. कभी कभी क्या करते हैं लोग, बोले कि सर एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड ये 1 है, यस सर। 2 है, 1 + 2 यस सर। स्पीड 1 + स्पीड 2 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं कभी कभी, which is wrong. It's not the process. Average speed क्या होता है? Total distance divided by total time. Correct? Understood? यस सर। What is the total distance? 50 plus 100 meters. 100 meters. Yes, sir. Now total time. So what is the time taken for this? 15 seconds. 50 by 5, 10 seconds. Here, Yep. for this. And Yeah. for here, it takes 8 seconds. 5 seconds. Yes, sir. What is the so what is the total time? 10 15 plus 5. seconds. 15. 10. 100 divided by 15. Okay, so this is the answer. 6.66 meter per second. Okay, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस। संस्कार आपको समझ में आया? Yes, sir.
is one object which goes from A to B. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And then it goes again from B to C. Ten seconds. 20 seconds. Here the speed is 5 meter per second, and here the speed is 10 meter per second. Find the average speed. Solve कीजिए. Sir, 8.33 meter per second. सब कोई सॉल्व किए? सब कोई सॉल्व कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is average speed? Sir, Here we find out. So first we write down the definition. Average speed. Total distance traveled, distance traveled by total time. time taken. So what is the distance traveled here? 50 meters. 200 meters. Yeah, 200 meters. Two 50 by 30. okay, so 8 point. So it becomes 8.33 33. meters per second. Okay, so now I have few questions to all. This one object goes from again A to B to C. This AB is half the distance, that is
d by 2 and BC is also d by 2. For AB, the velocity is v1. For BC, the velocity is v2. Find average speed. Which is Sir, sir, हाँ बोलिए. सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. A से B है डिस्टेंस d by 2. ठीक है. B से C है डिस्टेंस d by 2. A से B वेलोसिटी v1 लेकर के एक पार्टिकल गया. B से C वेलोसिटी v2 लेकर के एक पार्टिकल. यस सर. एवरेज स्पीड कितना है पार्टिकल? समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो. Sir, आंसर निकल गया. एक मिनट. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ठीक है. Yes, sir. तो सिंपल है. क्या करना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, एंड यू विल गेट द आंसर. बताइए. Sir, my answer is 2 by V1 plus V2. आंसर इज 2 by V1 plus V2. 2 बाय v1. V2. कोई और आंसर है? Yes, sir. ठीक है. और भी कोई आंसर है? लोग बोल रहे हैं. जीजा जी. ठीक है. तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d by 2 plus d by 2. ये है ना टोटल डिस्टेंस कवर्ड. Yes, sir. d by 2 plus d by 2 That means D. divided by total time. What is the time taken to cover this distance A to B? D by 2 V1, and to cover this it takes D by 2 V2. तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? D by 2 V1 plus D by 2 V2 होगा Yes, sir. इक्वल्स टू D. ये दोनों D by 2 V1 plus V2 V1 V2. D चला गया. 2 V1 V2 by V1 plus. Correct है? Yes, sir. Okay, so this is the answer. Okay, so total distance, always remember total distance by total time. तो आपको total distance निकालना है और total time से बस divide करना है. That's it. Total time कैसे निकलेगा? Distance divided by speed, distance divided by speed, t1 t2. That's total time. Clear? Yes, sir.
ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, आगे Yeah. बढ़ो. There is one particle which is going in a circle. Okay. And it covers half of the circle. इस सर्कल का रेडियस है r. So from A to B, what is the distance covered and what is the displacement covered? बताइए. So distance covered equals pi r Displacement. and displacement is 2r. कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. बाकी स्टूडेंट्स? So actually this question is quite simple, and this question was asked in one of the competitive exams also. 1983 IIT की स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन पूछा था, और जो पिछला क्वेश्चन में दिया वो भी 1991 में IIT के एग्जाम्स में है. सो So if this chapter is covered, then we will be, so in our next class we will move for the next chapter. Yes. And I will send some questions for this chapter. तो आप लोग सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आप ले करके आना. ठीक है. हम लोगों ने ये
ये हो गया T1, ये हो गया T1, ये हो गया V1, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम 0 से T1 तक वेलोसिटी V1 से जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 0 पे उसका वेलोसिटी 0 है एंड देन T1 पे उसका वेलोसिटी हो गया V1। तीसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 0 पे उसका वेलोसिटी था V1, T1 पे उसका वेलोसिटी हो गया 0। और चौथा ऑब्जेक्ट है जो कि आधे टाइम में वेलोसिटी v रीच करता है, उसके बाद फिर वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? नो सर, एकदम नहीं। बिल्कुल नहीं। There is one object which has velocity of v1 from time 0 to t1। समझ में है? ये समझ में है? नो नो सर। ओके। अगर सपोज मैं आपको दूं, ठीक है, we'll replace this by some values। 10 seconds and this is 2 meters per second, okay? यस सर। है ना? There is an object A जो कि 0 से 10 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो Yes, उसका sir. ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। Yeah. Is it okay? Then Yeah. now there is an object which is B at time 0, है ना? At time 0 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। Yes, sir. एंड एट टाइम 10 सेकेंड इसका वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप लगाइएगा ये v इक्वल्स u प्लस at, Yes, sir. तो इसमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 2, u हो जाएगा 0, टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा सिंपल है। एट Yes. टाइम 0 it is having 0 meters per second, at time 10 seconds it is having this 2 meters per second, Yeah. okay। So this is the graph of object 2, Yes, sir. and there is C which is having a velocity of 2 meters per second Yes, sir. at 0, and it goes to 0 meter per second, okay, at time of t second, 10 seconds। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। Yes, sir. And then there is one more object which is D, goes 0 से 2 meter per second में, in 5 seconds it goes from 0 to 2 meter per second, Double second. okay। तो ये D जो है शुरू में 0 है, 5 सेकेंड पे ये 2 meters per second पे आता है, और 10 seconds पे ये फिर से 0 हो जाता है, ओके। समझ में आ रहा है? Sir, the case in object D is not clear. D it goes from 0 to 2 meters per second in 5 seconds, and then Yeah. again it goes down. It deaccelerates. समझ में आया? Yeah. ठीक है। Yes, sir. Now we have to find out the distance traveled by all 4 particles, all 4 objects. That means some now. A का आप डिस्टेंस बताइए, B का डिस्टेंस बताइए, C का डिस्टेंस बताइए और D का डिस्टेंस, Yeah. सबका अलग अलग, Yes, sir. okay। You're getting? Yes, sir. The question is clear, बताइए।
क्वेश्चन सब क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन Yes, sir. ठीक है, बताइए आंसर्स। Set ऑब्जेक्ट set ऑब्जेक्ट three objects का निकल गया, fourth का निकाल रहे हैं अभी. Yes, wait. फाइव मीटर्स का वो भी डिसलरेट करता है. हो गया।
हो गया? 10 minus 10. Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट ए का क्या है? Sir, 20 meter. ऑब्जेक्ट ए बहुत सिंपल है. Uh, Okay. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो 2 मीटर पर सेकेंड से this is the time, so just this area will be the distance traveled by the object. So it is 2 meter per second into 10 seconds equals yes, sir. B का बोलिए. Sir, 10 meter. कैसे? Half into base into height, that is the area of the triangle. है ना? So 10 seconds, half into 10 into 2. So 10 meter. C, Sir, 10 meter. C also same. Half into base into, that is the height, 2 meters. Okay. So here it becomes D, Answer D, 10 meters. D also 10 meters. 10 meters. So now how D also 10 meters? तो ये इस एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. ये एरिया ये इसका हो गया हाफ इनटू 5 इनटू 2. इसका भी उतना ही होगा. हाफ इनटू 5 इनटू 2 हो गया 10 meters. 5 plus 5 10 meters. So you see by this what we understand is कि अभी A जो पहला ऑब्जेक्ट है that is moving at a uniform speed of 2 meters per second and that is having the maximum distance. Object B is accelerating. इसका velocity देखो बढ़ रहा है, 0 से 2 हो गया और इसका distance क्या है 10 meters. C is deaccelerating. C का पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर उस पर ब्रेक लगा और उसको 0 मीटर पर सेकेंड पे लाया. So it becomes, so the distance traveled is 10 meters. So now एक ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 2 से घटकर 0 हो रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी 0 से बढ़कर 2 हो रहा है. तो एक का वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक का वेलोसिटी घट रहा है, बट the distance covered is Same. same. और एक है जो लास्ट है उसका बढ़ के फिर घट रहा है. The distance covered is again Same. same. So just by knowing, है ना, सपोज किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी, एक ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी घट रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, आप क्या बोलोगे? और दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है. कर सक Till the time we don't know exactly what is that velocity and time and all, we cannot tell anything about the distance. Clear? Yes, sir. अभी इस ग्राफ पे आते हैं. There is one object A, B, C, 5 objects are there, D and E. इसमें बताइए which object is, अच्छा ये वाला क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? इसका नहीं क्लियर हुआ तो बोलिए, पूछ सकते हैं. बहुत सिंपल, लाइक देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल. क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलिए. ऐसा है किसी को कुछ समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं. सर क्लियर है. आपका क्लियर है, बाकी लोग? बोलिए, मैं फिर से समझा सकता हूँ.
मैं थ्योरी, इसका थ्योरी भी बता सकता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सबका? क्लियर है तो सब लोग हाँ बोलिए। हाँ सर क्लियर है, बोलिए। Sir, once more. हाँ Once more. एक बार फिर से समझाएं। Yes. ओके, देखो सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 10 सेकंड तक, तो उसका बताओ डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 10 meter. 2 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड तक चल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 20 meters. Simply Hmm? easy. सिंपल है ना? Yes, sir. मीटर पर सेकंड से ये 10 सेकंड तक चल रहा है, तो आप बताइए इसका डिस्टेंस बताइए। ये क्लियर नहीं है? इसमें प्रॉब्लम है? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो 2 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड चला तो कितना हुआ डिस्टेंस बोलिए? 10 What is the meter. distance? हाँ 10 meter. हाउ 10 मीटर? डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलिए। जब स्पीड और टाइम दिया है तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम कितना होगा? सर दूसरा 20 meter. 20 मीटर ना? 20 मीटर्स ना? Yes, sir. 20 मीटर्स, ओके। और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? सिंपल सा बात है, वेलोसिटी टाइम, तो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या है? नहीं समझ रहे? आप अपने घर से निकलिए अपने स्कूल जाने के लिए, आपका स्कूल कितना दूर है बोलिए? आपका स्कूल कितना दूर है अप्रोक्सीमेटली? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर? 1 kilometer. ओके 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर। अभी आप निकल रहे हैं अपने घर से और आप हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड है, तो आपको कितने सेकेंड्स लगेंगे जाने में? सर 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड्स है ना? 1000 मीटर अगर 1 मीटर 1 सेकंड में करते हैं तो 1000 सेकंड लगेगा, सिंपल है। और जब आप स्टार्ट किए अपने घर से तो स्पीड आपका क्या है? 1 meter per. 1 मीटर पर सेकंड है। Yes, sir. स्पीड तो आपका 1 मीटर पर सेकंड है ना? तो और जब आप बीच में जा रहे हैं उस समय आपका स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकंड नहीं है, स्पीड sir. आपका कांस्टेंट है, ठीक है? तो एट टाइम इक्वल टू 0 आपका स्पीड क्या है? लेट अस से 1 मीटर पर सेकंड, टाइम इक्वल टू 10, आपका स्पीड क्या है? मीटर पर सेकंड। ऐसे करके 1000 तक आपका स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकंड। तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट में होगा, हर Yes. टाइम स्पीड तो सेम है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एवरी टाइम। व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इज इट क्लियर? इसमें कुछ प्रॉब्लम को भी पूछो, ये अगर No, sir. बाद में आपको बहुत डिफिकल्ट हो। क्लियर है हाँ या नहीं? Yes, sir. सब लोग बोलो हाँ। संस्कार आपको क्लियर होता है? Yes, sir. These are like what I am talking now. It's not that difficult. It's quite simple. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हर टाइम पे आपका क्या वेलोसिटी है ये हमारा ग्राफ बता। तो 0 से 1000 सेकंड तक हमेशा आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। दिस इज द टाइम, क्लियर? दिस इज द every time there is a velocity, there is a velocity time graph. Now when we are talking about object 1,
we are talking about object 1, the velocity is meter per second from 0 to 10 सेकेंड. तो उसका ग्राफ ऐसा रहेगा कि नहीं? Yes, sir. वही तो मैं किया हूँ यहाँ पे. ठीक है, नहीं है ना? तो Yes, इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये एरिया, तो एरिया क्या है? ये इधर है. 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड 20 मीटर. समझ में आया? कुछ दिक्कत है? आधा मिनट सोचो, दिक्कत है तो बोलो. sir, no problem. ठीक है, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अगर फिर से अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगा. नो इश्यू. किसी को कोई दिक्कत है तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग. संस्कार, आपको भी अगर इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए. No, sir. हाँ? ठीक है. Now for object 2 में क्या है कि हमारा वेलोसिटी जो है शुरू में इट इज 0 and then at 10 seconds the velocity becomes 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी का बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. ये ग्राफ होगा. कोई दिक्कत है? No, sir. किसी को कोई भी दिक्कत पूछिए. No, sir. No, sir. Okay, so now when we talk about the distance covered, this is the distance covered. Okay, and what is the distance covered? तो एक ट्रायंगल का क्या होता है? एरिया. बोलिए. Half into base into height. Half into base into height. Half into 10 second into height is 2 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड में हो कितना हुआ? 10 seconds. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. For object 3, the velocity was 2 meter per second and then it becomes 0. So this is the graph. Yeah. This is the graph. तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा ऑब्जेक्ट 3 का? ऑब्जेक्ट 3 का ग्राफ हो जाएगा ऐसा. This is the distance covered. तो इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगेन बेस इज 10. 10. This is 2. and this is 2. So half into base into height becomes 10 again meter. 10 meter. और this is C and D is this one. D का क्या है? D goes from here till here. आधा तक इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर 0 आ रहा है. ठीक है. तो Yes. area, this is the distance plus this area will be the distance. So half into base. ये हो गया 5 seconds. Yeah. ये हो गया 5 seconds. Yes, sir. So this is the. So this half into base is half into 5 into 2 plus half into base into height. 5 plus 5 10 meter. Yes, sir. Full confusion? No confusion. No, sir. No confusion? No, Yeah, no. sir. हाँ बोलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए. तो यही हम लोग जो है
इस पूरे, so we are trying to understand how to solve equations through graphs. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे और किस हिसाब से डिस्टेंस निकलता है फॉर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, है ना। तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट ए बी सी डी में किसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, बोलिए। सर ऑब्जेक्ट 2, ए बी सी डी में कौन सा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है? सर बी। बी। वेलोसिटी 0 था फिर 2 हो गया। किसी को कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम? नो सर। और ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, सर कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट ए। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है वेलोसिटी? सर ऑब्जेक्ट डी। ऑब्जेक्ट डी। डी, गुड। ठीक है, तो अब देखिए जिसका इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है उसका भी डिस्टेंस, जो डिक्रीज कर रहा है उसका भी डिस्टेंस और जो इंक्रीज कर रहा है उसका भी, तीनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट जो जिसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करे। हम लोग वी कैन नॉट टेल दिस until unless we know exactly उसका किस हिसाब से क्या वेलोसिटी। अच्छा, अभी आप मुझे ये करो, सी अभी आप एक मुझे डायग्राम बना के दिखाओ जिसमें एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो रहा है 0 से 5 सेकेंड्स तक, क्या हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि 0 पे 0 है। ठीक है, यस सर। और ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस टू, है ना, from 0 second of it increases to 0 meter second to 2 meter per second, and then from 5 seconds to 10 seconds इसका जो स्पीड है that remains 2 meter per second only। ठीक है, अभी इसका ग्राफ बताइए कैसा रहेगा। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर बन गया। बन गया? यस सर। बताइए कैसा रहेगा। और सब लोगों को बना? किसको, किसी को कुछ टाइम चाहिए? हाँ 5 10। बोलिए, किसी को कुछ टाइम चाहिए? बोलिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। At time is equal to 0, it is having 0 meter per second. At time 5 seconds, it is having 2 meters per second. And at time 10 seconds also, it is from 0 to here, it is constant at 2 meter per second. इधर से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बताइए कैसा रहेगा ग्राफ? सर एक हाइपोटेनस टाइप का होगा। एक मिनट सब लोग सॉल्व किए हैं? सब लोग सबको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बोलिए, हाँ या ना बोलिए। अगर नहीं समझ आया तो फिर से बताऊंगा। यस टेल यस और नो, बोलिए, सब लोग बोलिए। लेकिन यस सर। आपका यस ठीक है, और लोगों का? और लोगों का बोलिए।
Yes or no? नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, इसका बताइए क्या होगा ग्राफ? बोलिए ग्राफ क्या होगा इसका? सिर्फ 5 से एक परपेंडिकुलर 2 तक हम लोग मतलब एज्यूम करेंगे और फिर 0 से उस पॉइंट तक ड्रॉ कर देंगे पहले। ओके, ऐसा? यस सर। और उसके बाद? फिर उसके बाद फिर 10 से हम लोग एक राइट मतलब एक परपेंडिकुलर अप्रॉक्स एज्यूम करेंगे और फिर वो जो यस सर फिर और ये जो ऊपर में 2 पॉइंट है दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। This is the area which will be traveled by the, ठीक है? यस ओके, सर। तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग ग्राफ्स के साथ थोड़ा सा और ये करेंगे ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो भी ग्राफ, कभी भी ग्राफ आप लोग देखिए, so actually through the graph we can tell, we can depict and we can understand and analyze the entire motion and entire coordinates, acceleration, velocity, speed, distance, सब कुछ हम लोग केवल एक ग्राफ से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so next time we will go little more deep into dealing with graphs, ठीक है? In the meanwhile, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं I can take some extra class also for this, ठीक है? अगर यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ओके? अगर रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, जो फोन नंबर है ना 7477724777, वो ग्रुप में दिया हुआ है वो फोन नंबर, उस फोन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। लेकिन यहाँ तक जो है आप लोगों को I want that everyone should understand the basic definition of velocity, time, how to draw a velocity time graph and all. Okay. Next class we will be dealing more with this. Okay. Thank you very much. Thank you sir. Thank you.